हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द DPP5 solution of DPP5. Question number 1, the system of equation has how many solutions? Just you need to find the value of determinant of the matrix A, and अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो यूनिक सॉल्यूशन. इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, then we need to find adjoint A into B. If it is again equal to 0, then we can't say anything. If it is not equal to 0, adjoint A into B not equal to 0, then the answer is no solution. So for the first question, as you can see, determinant A is equal to 0, so unique solution is not possible. So this option B is not possible. Now we further find adjoint A into B. Adjoint A just we need to find separately, and I have given shortcut technique for this also, so you can use that also. And into B, the B matrix is column matrix, just multiplication of these two matrix. If it is equal to 0 again, then as you can see here, if it is equal to 0, then answer is infinite solution or no solution. We can't say anything about that, okay? But if it is not equal to 0, then no solution. Okay, in NCERT book they have not given any separate technique to find whether it is infinite or no solution for this particular case. Okay, well actually it is there is some method to find the solution exactly whether it is infinite or no solution whenever adjoint A into B equal to 0, but that is possible using determinant, and that will study in JEE portion. Okay, but here we can just directly write no, so we can't say anything whenever adjoint A into B equal to 0, because we do not know the condition of infinite and no solution स्पेशली फॉर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो. हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन, वो दोनों में से कौन सा आएगा, दैट थिंग्स कैन नॉट बी फाइंड डायरेक्टली यूजिंग NCERT formulas. Okay, let's have a second question. The given system of equation has non-zero solution, then find value of k. As you can see, I have written over here something, that is, if equation has non-zero solution, it means there are many non-zero solutions is possible, always possible. So this equation have many solutions, infinite solution है ना. There are many solution can be possible which are non-zero. So ये infinite solution का question है. It means what कि अगर infinite solution है तो determinant की value, that is determinant A equal to 0 होगा. Just by taking determinant A equal to 0 for these three equation, we get easily our answer of k. That's all. Then third one, if this matrix of A having inverse possible, then find condition of lambda. Well, whenever inverse is possible, determinant A is not equal to 0. That's all. Okay, inverse exists, then determinant A not equal to 0. एक minute, it is not equal to 0, sorry. So it is not equal to 0, hence it is also not equal to 0. So this determinant not equal to 0, hence final answer is also not equal to 0, not equal to 0, not equal to 0, and not equal to 0. Lambda should not be minus 8 by 5, which is again not given, that is the answer is D. Okay, then this question is okay, minute. Then fourth question, if A and B are invertible matrix, then which of the following is not correct? Obviously A correct है, adjoint A equal to determinant A into A inverse, it is formula. डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेट ए होल इनवर्स हमने इस तरह से लिखा था, याद हो तो ये इनवर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली रिटन ओवर हियर जस्ट इन द लैंग्वेज फॉर्म. और ये भी हमको पता है रिवर्स ऑर्डर हो जाता है इनवर्स अंदर देने पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एंड एडिशन के अंदर हम इनवर्स अंदर डायरेक्टली दे ही नहीं सकते. सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट डी, दैट डी इज़ नॉट करेक्ट. सो नॉट करेक्ट वाला ही फाइंड करना था. द आंसर इज डी. डी करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर डी है. ठीक है, फिर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. यू नो दिस टेक्निक हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो दिस इज ट्राई योर सेल्फ. ये तीनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, बराबर. ये सेवन्थ क्वेश्चन भी हमने एक मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में देख लिया था. सो जस्ट बाय एज्यूमिंग 1/x इक्वल टू कैपिटल X, 1/y इक्वल टू कैपिटल Y, एंड 1/z इक्वल टू कैपिटल Z, this equation can be formed in the form of simple generalized form.
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी तरह के फॉर्म में आ जाएगा, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एंड इट इज़ ऑलरेडी वी हैव सोल्ड इन मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, सो ये 5, 6 एंड 7 अपने आप ट्राई करना है ना, ये टफ नहीं होंगे इतने ज़्यादा. फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी एक्चुअल में एक्सरसाइज में हो गया है इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी मैं एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका. एज यू कैन सी हमने क्या लिखा है अभी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6. 3 नंबर एज्यूम कर लिए पहले, ये 3 नंबर एक्स वाई जेड है, तीनों का समेशन 6 है पहले दिया है. इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे दैट इज़ 3z, एंड ऐड इट एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, उसमें सेकंड नंबर दैट इज़ y ऐड करने पे वी गेट 11, एंड बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड x एंड z, ये दोनों नंबर को ऐड करने पे वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब y का डबल दैट इज़ 2y. बस इसको इस तरह के फॉर्म में लिख दिया एक्स वाई जेड की सीक्वेंस में, जहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो 0 से x लिखा है और कुछ नहीं है, एंड वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, एंड एट लास्ट आफ्टर सॉल्यूशन using matrix method we get this x y z. You just check it out by yourself. Okay, and in question number 9 I don't think so it is also difficult. Inverse find करना है, that is easy from the a, that is adjoint a by determinant a. Okay, so ये तो हो जाएगा पहले वाली चीज़. फिर मुझे ये प्रूव करना है, so LHS इक्वल टू तो हमको a इनवर्स मिल गया है, so whatever we get that is our LHS. एंड RHS को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a² माइनस 3i इंटू 1/2 ऐसा कुछ है. चलो तो पहले a² फाइंड कर लो, ठीक है, पहले a² फाइंड कर लो, फिर -3 है उसमें सब्ट्रैक्ट करवा लो, एंड जो भी मैट्रिक्स मिले उसमें 1/2 मतलब 2 डिवाइड कर लो, वट एवर RHS मिलेगा दैट इज शुड बी इक्वल, है ना, ये RHS एंड LHS इक्वल होने चाहिए, दैट वी नीड टू प्रूव हियर. ओके, एंड बाय दैट वे क्वेश्चन 9 ऑल्सो कैन बी इजीली कंप्लीट. क्वेश्चन 10 में ये भी ऑलरेडी मिसलेनियस एग्जाम्पल में हो चुका है, सिमिलर वे से आप कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस ऑल्सो. पहले a इंटू p फाइंड करना है, एंड देन वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग दिस, है ना. इसका a इंटू b का मल्टीप्लीकेशन 99 नहीं लेकिन 100% i ही आएगा, एंड फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट b इक्वल टू a इनवर्स और a इक्वल टू b इनवर्स, और ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एज अ इनवर्स, क्योंकि जैसे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म से कभी भी सॉल्व करते हैं तो इनवर्स की ज़रूरत पड़ती है ना. सो बाय दैट वे यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन 10 ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड इन NCERT एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल में था, मिसलेनियस एग्जाम्पल में था, ठीक है. सो यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, इट इज़ अगेन नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टुवर्ड DPP 6. ओके, DPP 6 के अंदर थोड़े क्वेश्चन टफ है, ऐसी बातें मुझे सुनने मिली है स्टूडेंटों से कि DPP 6 में थोड़े क्वेश्चन टफ है, तो लगभग मेरे सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट चेक इट आउट. पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट मैं दिखा देता हूँ. चलो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो ये जो लास्ट कॉलम है ना उसको सेपरेट कर दो. लास्ट कॉलम की हेल्प से हम 2 डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट कर लो लाइक दिस. ओके, ये a⁴, b⁴, c⁴ यहाँ पे आ जाएगा, एंड 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख सकते हो. So by this way we can split this determinant into 2 determinant. Now ये पहली रो में से a b c ऐसे कॉमन निकाल के इस तरह से बन जाएगा a b c like this into this one and minus this one as it is. अब यहाँ से हमको पता है कि कैसे, जैसे कि 1 1 1 है तो हमको कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो 2 0 बना लो. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 0 बना लो. ये दोनों डिटर्मिनेंट को सेपरेटली सॉल्व कर लो. सो बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर. इसका आंसर ये मिल जाएगा और इसका आंसर ये मिल जाएगा, बराबर. अब इसके डायरेक्ट आंसर वैसे तो पता होने चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह से डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं बाद में. एक जेडबली का स्पेशल लेक्चर लूँगा तब मैं इसके डायरेक्ट फार्मूला कैसे बनाने हैं वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि NCERT की फॉर्मेट में तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते. वी जस्ट नीड टू यूज़ दिस सॉल्यूशन, और सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हमको चाहिए NCERT में. मतलब CBSE की कोई भी एग्ज़ाम रहेगी या गुजरात बोर्ड की कोई भी एग्ज़ाम रहेगी तो उसमें आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा क्या कैसे आंसर आता है, बट यू कैन यूज़ दिस डायरेक्ट शॉर्टकट इन जेडबली. सो अभी फ़िलहाल तो अपना दिमाग मत खर्च करो कि भाई ये कैसे डायरेक्टली सर ने लिख दिया. यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ वेन एवर वी विल कम्प्लीट द पोर्शन ऑफ जेडबली. ओके, अब इसका सोल्यूशन ये बन जाएगा. मेथड आपको पता है 2 0 बनाने वाली मेथड. सो बाय दैट वे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस वन एंड दिस वन.
अब ये दोनों में से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन, एंड द रिमेनिंग टर्म वट एवर आर देयर, बाई दैट वी गेट दिस आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन 2 ऐसा लग रहा है जैसे टफ होगा, है ना, इसमें भी सॉल्यूशन करने में मज़ा तो नहीं आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे एक एरर भी है, ये 2 है ना वो नहीं है, ठीक है, ये 2 को निकाल देना अपने में से, क्वेश्चन में से भी है बराबर। तो ये एरर बस एक चेंज कर लेना, एंड बस अभी सॉल्व करो इसको। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वैसे इस तरह के सभी क्वेश्चन में जब अंडर रूट वाले इस तरह के बड़े बड़े टर्म आ जाए तो मोस्टली क्या हिंट होती है वहाँ पे, पहले तो ये जो कॉमन जो कॉलम है, जो छोटी वाली कॉलम, इसमें अगर पॉसिबल हो तो कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लो। जैसे यहाँ पे √5 कॉमन निकल रहा है सेकंड कॉलम में से, एंड थर्ड कॉलम में से भी √5 एटलीस्ट कॉमन निकल जाता है, देखो। ओके, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में से मैंने √5 कॉमन निकाल दिया। नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर हियर कि पहले लास्ट कॉलम को अगर मैं समझ लो माइनस, ये जैसे यहाँ पे √13 है, ये √26 है, √65 देख के मुझे ऐसा लगा कि लास्ट कॉलम को √13 से, नेगेटिव √13 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अगर मैं फर्स्ट कॉलम में डाल दूँ तो ये √13, √26, √65 यहाँ पे क्रिएट होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, देखो। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस √13 इंटू कॉलम 3, तो कॉलम 3 को माइनस √13 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में डाल दिया, सो आई गेट दिस 3 टर्म, ठीक है, ये पर्पल वाले टर्म मिल गए मुझे। एंड सिमिलरली कॉलम 2 में √3 है ना, नेगेटिव √3 मल्टीप्लाई करने पे, जैसे यहाँ पे -2 √3 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे √3 मतलब बन जाएगा √15, है ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करने पे √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, और 3 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 3 - 3 कैंसिल कर लेगा ना, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो। सो बाय यूजिंग सेकंड कॉलम को -√3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में डाला, एंड थर्ड कॉलम को -√3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट कॉलम में डाला। सो व्हाट आई गेट हियर इज दिस वन। ओके, ये तो पूरा कैंसिल हो गया सेकंड एंड थर्ड रो का एलिमेंट, बस यहाँ पे -√3 बचा, √3 - 2 √3, एंड बाय यूजिंग दैट जस्ट सिंप्लीफिकेशन एक्सपांसन कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो इट इज़ एज इजी एज यू कैन सी, बट वी जस्ट नीड टू नोटिस लाइक दिस, है ना, ये हमको नोटिस करना पड़ेगा। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में पहले √5 नोटिस किया, एंड देन जो भी बचा उसको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में डालोगे तो कुछ कैंसल टर्म होते हुए दिखाई देने चाहिए। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नोटिस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बराबर। इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं रूट वाले सभी बहुत सारे टर्म, तो ऐसी कोई चीज़ें नोटिस करो, ठीक है। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी DPP 2 में या कहीं पे DPP 2 में सॉल्व कर लिया था। इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो मैं, ठीक है। DPP 2 में क्वेश्चन नंबर 6 था, बराबर। दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये हमने प्रूव किया था यूजिंग दिस मेथड। आप अगर चाहो तो वापस वीडियो देख सकते हो, या फिर यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन देख लो एक बार फटाफट से। यहाँ तक की प्रोसीजर तो सिमिलर है, फिर यहाँ से आपको पता है कैसे आंसर बनाना है। ये 0 बनाओ ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके ये 0 बनाओ, और इसको ऐसे करके ये 0 बना लो, 2 0 बन जाए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हमको पता है a - b, b - c, c - a आ जाएगा, इंटू -1 एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा, वो यहाँ पे आंसर बना देगा। -4 इंटू a - b, b - c, c - a प्रूव हो जाएगा। -4 इंटू x - y, y - a, z - x, वहाँ पे ABC था, यहाँ पे x y z है। सिंपली यू कैन प्रूव बाई दैट वे। ओके, DPP 2 क्वेश्चन नंबर 6। फिर ये इसको प्रूव करने के लिए सबको एक रो में डाल दो भाई, या फिर सबको एक कॉलम में डाल दो। मैंने क्या किया है, रो में डाल दिया सबको, है ना, क्योंकि ये a - b - c + 2b + 2c ये मैंने नोटिस किया अला सिमिलर टर्म जैसी चीज़ें देख के। तो ये a ऑलरेडी a है, 2b - b दैट इज़ b, एंड 2c - c दैट इज़ c। सो a + b + c वी गेट ईयर। सिमिलरली a + b + c यहाँ पे भी बन जाएगा और यहाँ पे भी बन जाएगा, एंड देन उसको कॉमन निकाल लो, 1 1 बन गया, फिर 0 0 0 बना लो, मतलब इसको यहाँ पे डाल के, वो आपको पता ही है कैसे करना है यहाँ से, तो फिर ठीक है, एंड देन यू कैन सॉर्ट इट आउट, यू विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जनरली स्टूडेंट
को आइडिया नहीं आता कैसे करना है, सबसे पहले तो क्या चीज़ नोटिस करनी है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट दिस p माइनस ए फॉर्मेट, q माइनस बी फॉर्मेट एंड r माइनस सी फॉर्मेट. सो हाउ वी कैन क्रिएट इट, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे p माइनस ए का फॉर्मेट बना सकते हैं. सिमिलरली थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड में डालोगे तो ये q माइनस बी और यहाँ पे c माइनस आर, तो p माइनस ए क्यू माइनस बी सी माइनस आर का फॉर्मेट आराम से मिल जाएगा. और साथ में मुझे 2 0 भी मिलेगा, एज यू कैन सी ये 2 0 भी मिल गया यूजिंग दिस ए एंड दिस सी सी. ओके, ठीक है, ये 2 2 1 को यूज़ करके 1 2 0 भी मिले और साथ में मुझे p माइनस ए क्यू माइनस बी एंड आर माइनस सी का फॉर्मेट मिला. अब एक बार ये फॉर्मेट मिल गया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, बस इसी के यही फॉर्मेट में रखो, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, डायरेक्टली में एक्सपांड कर लो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. इसको एक्सपांड कर लिया चलो मैंने, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया. अभी देखो p माइनस ए इंटू आर इंटू अंदर फिर मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज व्हाट आई नीड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, तो उसको वही फॉर्मेट में रखो एंड बस मल्टीप्लाई करते जाओ अंदर अंदर. एट लास्ट आई गेट दिस वन. ओके, वेल p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, ठीक है, ये 3 टर्म है. यहाँ पे p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी बराबर, ये पहले वाले टर्म में फर्स्ट एंड सेकंड है, फिर दूसरे वाले टर्म में फर्स्ट एंड लास्ट है, देखो फर्स्ट एंड लास्ट, एंड तीसरे वाले टर्म में सेकंड एंड लास्ट है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों में से कोई भी 2 2 यहाँ पे है. और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि समझ लो यहाँ पे समझ लो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स है, इस तरह की कोई पैटर्न दिख रही है आपको और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, तो आप बस इसको कॉमनली एक्स वाई जेड, ये 3 ही टर्म यूज़ हुए हैं ना यहाँ पे, तो इसको कॉमनली एक्स वाई जेड से डिवाइड कर लोगे ना, तो क्या बन जाएगा, देखो सेपरेट करने पे 2xy बाई एक्स वाई जेड, मतलब 2 बाई जेड 2 बाई एक्स 2 बाई वाई, ठीक है ना, ये आराम से आपको दिखाई देगा 2 बाई जेड, क्योंकि एक्स वाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे वाई जेड कैंसिल हुआ तो 2 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल हो तो 2 बाई वाई. सो बाई दैट वे यू कैन इजीली फाइंड दी सिंपल फॉर्मेट. सो यहाँ पे वही किया मैंने, यही 3 चीज़ p माइनस ए क्यू माइनस बी एंड आर माइनस सी, तीनों के मल्टीप्लिकेशन से तीनों को डिवाइड कर लिया, ये तीनों इक्वेशन को, तीनों टर्म को. सो नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस फॉर्मेट, और ये नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है कि यहाँ पे उन लोग ने ना बोला है कि तीनों में से एक भी इक्वल चीज़ नहीं है. सो ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लिकेशन भी कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं. बस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या बचा, आर बाई p माइनस बी क्यू माइनस बी, और उसको इससे डिवाइड किया तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, r माइनस सी. सो एज यू कैन सी r माइनस सी यहाँ पे लिखा है. सिमिलरली q माइनस बी एंड p माइनस ए आई हैव रिटन, बट स्टिल आई डू नॉट गेट माई आंसर. और हाँ, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 नहीं आएगा. अगर 0 चाहिए तो फिर यहाँ पे जो आंसर है ना, यहाँ पे जो लिखा है ये फॉर्मेट अगर वहाँ पे होता तो 0 आंसर आता, बिकॉज व्हाट दे डिमांड वो पी क्यू आर ऊपर चाहिए एंड नीचे का तो वो फॉर्मेट एज इट इज़ है, ऊपर उसको पी क्यू आर चाहिए. और अभी मेरे पास आया था ऊपर आर बी एंड ए, मुझे पी क्यू आर बनाने के लिए थोड़ा और सेटिंग करना पड़ेगा, और वो सेटिंग करने पे मुझे यहाँ पे आंसर 2 मिलेगा. क्या मिलेगा, 2, ठीक है, 2 मिलेगा मुझे, मतलब ये 2 एक्चुअल में आंसर आना चाहिए, ठीक है. वो क्वेश्चन में आप चेंज कर लेना. ओके, फिर हाँ, अब यहाँ से मैंने किया क्या है, देखो यहाँ पे b है, मुझे लाना है q, ठीक है. तो b तो कौन से फॉर्मेट में एक्चुअल में, डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है ना, और यहाँ पे a जो है वो नेगेटिव में फॉर्मेट में है. पी क्यू आर वाले टर्म में ये जो ऊपर पी क्यू आर चाहिए, वहाँ पे r बाई आर माइनस सी ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है, ये तैयार हो चुका है. सो इसको मत टच करो. बाकी ये दोनों जो है वहाँ पे, यहाँ पे a है, मुझे a हटा के p लाना है, और यहाँ पे b है, मुझे वो b हटा के q लाना है, ठीक है, b की जगह q लाना है, ठीक है. यहाँ पे b की जगह q और यहाँ पे a की जगह p लाना है. तो ये b तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में नेगेटिव के फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, -1 इंटू -1 ले लिया, मतलब एक नेगेटिव बाहर रख दिया और एक नेगेटिव इसको दे दिया. सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव इसको दे दिया और एक नेगेटिव बाहर रखा है. सी ध्यान से देखना, ये प्रोसीजर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी अगर बराबर से नहीं समझ रहे हो तो. मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको. व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड -1 इंटू -1 2 बार, मतलब +1 हो गया, तो नेगेटिव एक इसको दे दिया और नेगेटिव मैंने बाहर रखा. एज यू कैन सी ये दोनों नेगेटिव अगेन वापस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाता है. सो इससे ये वाले फॉर्मेट में जा सकता हूँ. अब मैंने क्या किया, q को ऐड किया, q को सब्ट्रैक्ट किया. क्या किया मैंने,
आई हैव ऐड दिस क्यू एंड क्यू सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे पी ऐड किया, पी सब्ट्रैक्ट किया, एज यू कैन सी। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, एक्चुअल में ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे दिख के दिखाई है, क्यू ऐड एंड माइनस क्यू, पी एंड माइनस पी। ठीक है, सो एक्चुअल में यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब मैंने सेपरेट कर लिया, क्या किया, सेपरेट। तो सेपरेट करने पे डिनोमिनेटर सेपरेशन वो तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो जैसे r बाई आर माइनस सी, फिर यहाँ पे माइनस इंटू, ये दोनों का डिवीज़न क्या होगा, 1 है ना, दोनों एक ही है तो, और ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस कलेक्ट हुए ना, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, क्या बना फिर, प्लस क्यू बाई क्यू माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पे अगेन माइनस इंटू ये दोनों का डिवीज़न 1, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, p डिवाइडेड बाई p माइनस ए। नाउ ये दोनों नेगेटिव वन उस तरफ लेके गया तो 2 हो गया, -1 -2 उस तरफ गया तो +2, और बाकी जो 3 टर्म बचे वो मेरे LHS साइड के, मतलब वो मेरे प्रूव करने वाले टर्म ही थे, PQR के फॉर्मेट में आ गए। सो दिस इज व्हाट माय आंसर। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी दे कैन आस्क इन NCERT एग्जाम, सॉरी गुजरात बोर्ड या फिर कोई भी CBSE के एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन को, है ना। कभी कभी थोड़े बाहर के क्वेश्चन डालते हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो इस तरह की फॉर्मेट को देख के तो पहले यही चीज़ पता चलेगी, हम सबको एक ही रो में डाल दो या फिर एक ही कॉलम में डाल दो, है ना। तो ये मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, उसको कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 बचा। अब इसको ज़्यादा मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, 0 0 नहीं बना, उसका रीज़न क्या है, अगर आप बना के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे 2 0 बनाने के बाद जो फॉर्मेट मिल रहा है ना वो फिर मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उससे अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपांड कर लो। ओके, तो एक्सपांड करने पे एंड मल्टीप्लाई करने पे आई गॉट दिस 3, इसका ये बन गया और इसका इस तरह का सिंप्लीफिकेशन हो गया। चलो ठीक है, अब दोनों को अलग अलग दे दिया 0, पहला वाला इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को इक्वल टू भी 0 दे दिया। अब x इक्वल टू यहाँ पे बना a प्लस बी प्लस सी, वेर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x इक्वल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये दूसरी चीज़ यहाँ पे ना, ये खास देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट वाली टर्म उस तरफ चलेगी। चलो अब मैंने क्या 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया, पहले सबसे पहले क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, इस तरह की पैटर्न देख के, तो यहाँ पे मुझे इस तरह की कोई सिंपल सी चीज़ें दिखाई दी। अब मुझे ये वाली चीज़ यूज़ करनी थी, है ना, तो मुझे पता था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा। इस तरह की पैटर्न में कोई फॉर्मेट चाहिए तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू 0। अब ये जो है ना, ये उसको मैंने उस तरफ भेज दिया, तो मुझे फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, माइनस ऑफ 2a माइनस 2b माइनस 2ca, और इसका आंसर यहाँ पे रख दूँ, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac की जगह में अगर ये आंसर रख लो, क्या रखना है मुझे यहाँ पे, इसकी जगह पे ऑब्वियसली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, मैंने रख दिया, चलो 1/2 इंटू दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, अब फाइनली ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर, 3 कॉमन निकाल लिया, 3/2 एंड देन स्क्वायर रूट एट बोथ द साइड, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस वन। दिस इज योर आंसर, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। और ये बड़े टर्म है, उसको छोटे बनाने के लिए आपको पता है कैसे करने होते हैं हमको, पहले ऊपर से नेगेटिव मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला, सेकंड रो को नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, नहीं वो मैंने डायरेक्ट कर दिया एक्चुअली में, इसको ही -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला ताकि ये 8x ही पूरा निकल जाए, ये झंझट ही निकल जाए पूरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। फिर फर्दर सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाल दिया, आई गेट कैंसल्ड आउट इन फर्स्ट रो में भी एक्स वाले टर्म निकल जाएंगे। फिर इसको मैंने अगेन एक्सपांड कर लिया, देन व्हाट आई गेट एज एन आंसर, x इक्वल टू -11/97। अब और ये लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर DPP 6 का, बराबर। देखो चलो सबसे पहले तो ये इसको मैंने डी एज्यूम कर लिया, ठीक है, d इक्वल टू, सबसे पहले तो ये आराम से दिख जाएगा आपको, लास्ट कॉलम को पहली कॉलम में डाल दो या फिर पहली कॉलम को लास्ट कॉलम में डाल दो, डजेंट मैटर, डायरेक्टली ऐड कर दोगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे चीज़ रखा।
अब ये साइन थीटा कोस थीटा देख के मैंने क्या सोचा, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है ये, तो है ना, पता है हमको साइन थीटा इंटू कोस थीटा अगर है तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड कर लिया, ये 1/2 एज इट इज़, और इसका फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा। सो फाइनली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 साइन 2 थीटा। सो इसके जगह पे मैंने ये छोटा सा फॉर्मेट बना के रख दिया। अब क्या किया मैंने, 2 0 बनाने की कोशिश की, इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दिया और इसको माइनस मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाल दिया। व्हाट आई गेट हियर इज दिस वन। अब ये साइन 2a माइनस साइन 2b को और सिंप्लीफाई करने पे s माइनस एस का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो 2cs, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा दिया 2cs, 2a प्लस 2b/2, 2a माइनस 2b/2, एंड देन बाई सिंप्लीफिकेशन आई गेट दिस वन। a प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस सी, ठीक है। एंड कोस पाई माइनस सी, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है इसलिए आंसर माइनस कोस सी, सो -2 कोस सी इंटू दिस वन। तो ये हो गया साइन 2a माइनस साइन 2b का आंसर। एंड कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा या फिर कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b का आंसर तो आपको पता ही होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा, मतलब साइन बीटा प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा, यही फॉर्मेट में एक्चुअल में आंसर होता है। ये बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मेट आएगा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वापस एक बार जाना 11th के अंदर और एक बार चेक करना फॉर्मूला आपने सही याद रखा है क्या। फिर एक्स्ट्रा ये नेगेटिव b माइनस ए का फॉर्मेट नहीं चाहिए मुझे, a माइनस बी के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने a माइनस बी फॉर्मेट बनाने के लिए इसका नेगेटिव बाहर निकाल लिया। सो आई गेट a माइनस बी, और a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी रखा है। एंड देन साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो आई जस्ट नीड टू पुट साइन सी ओनली। ये नेगेटिव एज इट इज ऊपर से ही रखा है और ये भी ऊपर से रख दिया है। सो फाइनली मुझे ये दोनों की वैल्यू, ये पहले वाले दोनों की वैल्यू, ये पहले वाले दोनों की वैल्यू मैंने बना ली। तो सिमिलर फॉर्मेट से मैंने दूसरे वाले दोनों की वैल्यू बना सकता हूँ, यही फॉर्मेट से मुझे लिखना है तो बस मैंने लिख लिया वो। यू कैन चेक एंड वेरीफाई कर लो बस वही फॉर्मेट से लिखा है कि नहीं। And then sin a minus b common out from first row, sin b minus c common out from second row, -2 can be common out from first column, -1 can be common out from first column, so ये सब कॉमन निकल गए। तो फाइनली इतना डिटर्मिनेंट बचा और फिर इसको सॉल्व कर लिया तो फाइनली मुझे 1 इंटू साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी विच इज साइन ए माइनस सी, ओके, ये साइन ए माइनस सी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अवर आंसर। And by these way we have completed our last question also, and DPP 6 भी और हो गई। चलो फिर आई होप ये सभी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होंगे, अगर है तो आप मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।